Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In the last lecture, we have covered worksheet and we have prepared income statement, equity statement, and balance sheet by using worksheet. So in this lecture, I will cover five topics. One is the types of accounts, then closing entries, then post-closing trial balance, then correcting entries, and then classified balance sheet. Temporary versus permanent accounts. So there are two types of accounts, temporary accounts and permanent accounts. Temporary accounts are also known as nominal accounts, and permanent accounts are also known as real accounts. So at the end of the accounting period, we must close all the temporary accounts. What are these temporary accounts? Here you can see that all the revenue accounts, all expense accounts, and owner's drawing. All these accounts are temporary accounts. And why we close these accounts at the end of the accounting period? Because all revenue accounts, all expense accounts are representing a certain period of time. And owner's drawing is also representing a certain period of time. And that certain period of time in accounts is known as accounting period. So we do not carry forward these accounts in the next accounting period. We close all these accounts at the end of the accounting period. On the other hand, permanent accounts or real accounts are not closed at the end of the accounting period. Here you can see that all asset accounts, all liability accounts, and owner's capital accounts. So all these accounts are not temporary accounts, and these accounts are permanent accounts. So we do not close these accounts at the end of the accounting period, but we carry forward the accounts and in the next accounting period. तो यहाँ पे एक बात समझने की है और इसको आप याद रख लें कि जितने टेम्पररी अकाउंट्स हैं हम इनको अकाउंटिंग पीरियड के एंड के ऊपर क्लोज करते हैं। रेवेन्यू के अकाउंट्स हैं, एक्सपेंस के अकाउंट्स हैं, ऑनर्स ड्राइंग। चार एंट्रीज क्लोजिंग की पेट है, एक रेवेन्यू अकाउंट्स की, एक एक्सपेंस अकाउंट को क्लोज करते हैं, एक जो इसका नेट आता है रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस लेस करें तो अगर लॉस है या इनकम या लॉस उसको क्लोज करते हैं और ऑनर्स ड्राइंग को क्लोज करते हैं। तो चार क्लोजिंग एंट्रीज हम पास करते हैं, रेवेन्यू अकाउंट्स की, एक्सपेंसेस की, और इसका जो नेट है इनकम या लॉस उसकी, और ऑनर्स ड्राइंग। Closing entries. So here formally transfers net income or loss and owner's drawing to owner's capital. Analyzing and posting is the required step in the accounting cycle. तो closing entries में हम जो net income या loss है या owner's drawing है, ये दोनों चीज़ें हम owner's capital के अंदर close करते हैं या transfer करते हैं। दूसरा ये है कि हम obvious है कि उसकी journal entries पास करते हैं और उसको post कर देते हैं ledgers के अंदर। और income summary account जो है it's a temporary account that is used in closing revenue and expense accounts or minimizes the details in the permanent owner's capital account. इनकम समरी अकाउंट एक हम टेम्पररी एक अकाउंट ओपन करते हैं इनकम समरी के नाम से और रेवेन्यू को और एक्सपेंसेस को इस इनकम समरी अकाउंट के अंदर क्लोज कर देते हैं। और इसमें जो नेट डिफरेंस आता है, अगर वो रेवेन्यू ज़्यादा है और एक्सपेंसेस कम है तो वो नेट इनकम होगी, अगर रेवेन्यूज कम और एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं तो नेट लॉस होगा। तो इस नेट इनकम या नेट लॉस को फिर हम कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करते हैं। कैसे करेंगे हम नेक्स्ट स्लाइड में आगे चल के पढ़ेंगे। Here you can see a diagram of closing process for proprietorship. ये आपको नजर आ रहा होगा, इंडिविजुअल एक्सपेंसेस लिखा है और इंडिविजुअल रेवेन्यूज लिखा है और नीचे इनकम समरी लिखा है। हमें ये इल्म है कि जो इंडिविजुअल एक्सपेंसेस हैं इनका जो नॉर्मल बैलेंस होता है वो डेबिट होता है। जितने भी एक्सपेंस है, सैलरी एक्सपेंस है, वेजेस एक्सपेंस है, सप्लाईज एक्सपेंस है, रेंट एक्सपेंस है, इंश्योरेंस एक्सपेंस है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, जितने भी एक्सपेंसेस है आपने उनको क्लोज करना होता है और इन सब का जो नॉर्मल बैलेंस होता है वो डेबिट होता है। और ये लेजर आपको नजर आ रहा है, इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है आपको याद होना चाहिए, ये डेबिट साइड, राइट हैंड साइड है ये क्रेडिट साइड। तो जो जितने भी इंडिविजुअल एक्सपेंसेस होंगे उन सब के अकाउंट्स में जो बैलेंसेस पड़े होंगे वो डेबिट साइड पे होंगे
और जितने भी रेवेन्यूज के अकाउंट्स होंगे उनके जो नॉर्मल बैलेंसेस होते हैं वो क्रेडिट होते हैं, तो वो उनके क्रेडिट साइड पे आपको नजर आ रहे हैं। हमने एक टेम्पररी अकाउंट ओपन किया है, इसका नाम है इनकम समरी अकाउंट, ताकि हम उसको किसी अकाउंट के अंदर क्लोज कर सकें। तो जितने भी इंडिविजुअल एक्सपेंसेस हैं अगर वो डेबिट हैं तो उसको निल करने के लिए, यानी क्लोज करने का मतलब होता है कि आपने जितने एक्सपेंसेस हैं या जितने रेवेन्यूज हैं इनके बैलेंसेस को निल करना है, ताकि हम इसको कैरी फॉरवर्ड ना करें नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। तो हम क्या करेंगे कि जितने एक्सपेंसेस हैं जिनके तमाम के बैलेंसेस डेबिट हैं उनको हम क्रेडिट कर देंगे सेम अमाउंट के साथ। और दूसरा अकाउंट हम जो है वो यूज करें इनकम समरी, तो उसका जो, अगर इसको यहाँ पे क्रेडिट करेंगे तो इनकम समरी के अकाउंट को डेबिट करते हैं, तो हम जो एंट्री पास हो जाएगी वो हो जाएगी इनकम समरी अकाउंट डेबिट, और जितने भी इंडिविजुअल एक्सपेंसेस हैं वो क्रेडिट। इस तरह जितने भी एक्सपेंसेस होंगे उनके जो बैलेंसेस होंगे वो नील हो जाएंगे। सिमिलरली जो इंडिविजुअल रेवेन्यूज के अकाउंट हैं वहाँ पे नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट शो होगा, उसको नील करने के लिए हमें उसी अमाउंट से उस अकाउंट के जो बैलेंस है उसको डेबिट कर, अगर फॉर एग्जाम्पल 100,000 के रेवेन्यूज हैं तो 100,000 के साथ ही हम उसको डेबिट कर दें, ताकि ये अकाउंट क्लोज हो जाए, ये अकाउंट नील हो जाए। और दूसरा अकाउंट हम यूज करेंगे इनकम समरी अकाउंट। तो अगर हमने इंडिविजुअल रेवेन्यूज को डेबिट किया है तो इनकम समरी अकाउंट को डेबिट कर दें, क्रेडिट कर दें। इनकम समरी अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे और इंडिविजुअल रेवेन्यूज के अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। एक्सपेंसेस को अकाउंट को हमने क्रेडिट किया और इनकम समरी के अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया, और रेवेन्यूज के अकाउंट को हमने डेबिट किया और इनकम समरी के अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया। अब यहाँ पे जो इनकम समरी में जो बैलेंस शो हो रहा होगा, क्रेडिट साइड और डेबिट साइड, जब क्रेडिट में से डेबिट लेस करते हैं तो अगर हमारे पास क्रेडिट साइड ज़्यादा है और डेबिट साइड कम है तो इसका मतलब है कि हमें इनकम हुई। और अगर क्रेडिट साइड कम है और डेबिट साइड ज़्यादा है तो फिर इसका मतलब है कि हमें लॉस हो, क्योंकि क्रेडिट साइड पे आपने रेवेन्यू को क्लोज किया है और डेबिट साइड हमने एक्सपेंसेस को क्लोज किया, तो इसका जो डिफरेंस है वो नेट इनकम या लॉस होगा। तो रेवेन्यू साइड अगर बड़ी होगी और डेबिट, और जो लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड है अगर ये छोटी होगी तो इसका मतलब हुआ कि रेवेन्यू ज़्यादा है और एक्सपेंसेस कम है, तो इसका जो डिफरेंस है वो नेट इनकम है। तो ये यहाँ पे बैलेंस जो है आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ पे आपके पास बैलेंस है। तो हम क्या करेंगे, उसको हमने ट्रांसफर करना है अब कैपिटल अकाउंट के अंदर, ऑनर्स कैपिटल। तो हम क्या करेंगे, अगर हमारे रेवेन्यूज ज़्यादा हो और एक्सपेंसेस कम हो तो हम इनकम समरी अकाउंट को जो डिफरेंस होगा उससे यहाँ पे हम उसको डेबिट करेंगे और ऑनर्स कैपिटल को हम उस नेट डिफरेंस से क्रेडिट कर देंगे। इस तरह वो ऑनर्स कैपिटल के अकाउंट के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। ऑनर्स कैपिटल का जो अकाउंट होता है उसका जो नॉर्मल बैलेंस है वो क्रेडिट है। अगर नेट इनकम होगी तो ऑब्वियस है वो ऑनर्स कैपिटल के अकाउंट में जब क्रेडिट साइड पे जाएगी तो ऑनर्स कैपिटल जो है वो इंक्रीज करेगा। अगर इसी तरह ये लॉस होता है तो फिर आपकी रेवेन्यू साइड छोटी होगी यानी कम अमाउंट होगी, और आपकी जो डेबिट साइड है उसमें एक्सपेंसेस जो है वो ज़्यादा होंगे। अगर एक्सपेंसेस के अमाउंट ज़्यादा है और रेवेन्यूज कम है तो फिर जो नेट डिफरेंस है वो लॉस। अब जो नेट डिफरेंस है वो आपके राइट हैंड साइड पे आएगा, यानी रेवेन्यू वाली साइड पे आएगा, क्रेडिट्स वाली साइड पे आएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हमने ऑनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना है और इनकम समरी अकाउंट को क्रेडिट करना है। तो ऑनर्स कैपिटल को डेबिट करेंगे और इनकम समरी अकाउंट को उस डिफरेंस के साथ क्रेडिट करेंगे। इस तरीके से लॉस जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा ऑनर्स कैपिटल में। लॉस जो होते हैं वो ऑनर्स कैपिटल को डिक्रीज करते हैं और इनकम जो होती है वो ऑनर्स कैपिटल को इंक्रीज करती है। तो जो लॉस है अगर हम डेबिट कर देंगे तो फिर जो क्रेडिट साइड में से अगर डेबिट साइड लेस होगी तो ऑब्वियसली ऑनर्स कैपिटल की अमाउंट जो है वो कम हो जाएगी, डिक्रीज करेगी। अब हम क्लोजिंग एंट्रीज को जनरलाइज करते हैं। जो डाटा हम यूज़ कर रहे हैं, ये वर्कशीट जो हमने प्रिपेयर की थी, ये वहाँ से डाटा हम ले रहे हैं और इसको यहाँ पे हम अब यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि अक्टूबर 31 को सर्विस रेवेन्यू को हमने डेबिट कर दिया 10,600 से, और इनकम समरी अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। हमारे पास एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू था, उसका नाम था सर्विस रेवेन्यू। सर्विस रेवेन्यू आपको पता है कि नॉर्मली उसका बैलेंस क्रेडिट होता है, तो उसको, ये जो क्रेडिट था उसको हमने यहाँ पे क्या कर दिया, डेबिट।
इनकम समरी अकाउंट जो हमने एक टेम्परी अकाउंट ओपन किया था उसको हमने सेम अमाउंट के साथ क्रेडिट कर दिया। अगर हम इसकी पोस्टिंग देखें तो इनकम समरी अकाउंट के क्रेडिट साइड पे हमने लिख दिया 10,600 अक्टूबर 31, क्योंकि अकाउंटिंग पीरियड हमारा अक्टूबर 31 को एंड हो रहा है। सर्विस रेवेन्यू के अकाउंट में देखें तो यहाँ पे हमने इसको डेबिट कर दिया। 10,600 पहले से क्रेडिट बैलेंस मौजूद था और हमने जब इसको डेबिट कर दिया तो अब बैलेंस कितना हो गया, 10,600 क्रेडिट माइनस डेबिट, तो अमाउंट कितनी आ गई, जीरो। तो यहाँ पे ये जो सर्विस अकाउंट है ये अब क्लोज हो गया, क्योंकि इसका जो बैलेंस आपको नजर आ रहा है अब वो निल है, जीरो है। इस तरीके से हम अकाउंट्स को क्लोज कर देते हैं। सर्विस रेवेन्यू अकाउंट हो या और भी कोई रेवेन्यू का अकाउंट हो उसको ऐसे ही क्लोज करेंगे जैसे हमने यहाँ पे क्लोज किया। तो सर्विस रेवेन्यू को डेबिट कर दिया और इनकम समरी के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। अब इनकम समरी की जो क्रेडिट साइड पे जो बैलेंस शो हो रहा होगा वो 10,600 है। इस स्लाइड में अगर आप देखो तो जितने भी एक्सपेंस अकाउंट्स थे हमने उन सब एक्सपेंस अकाउंट्स को क्लोज कर दिया है इनकम समरी के अकाउंट। क्योंकि एक्सपेंस अकाउंट्स हैं इनका नॉर्मल बैलेंस डेबिट होता है तो हमने तमाम एक्सपेंस अकाउंट्स को क्रेडिट कर दिया। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है सैलरीज एक्सपेंस, एडवर्टाइजिंग सप्लाईज एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस, इंश्योरेंस एक्सपेंस, इंटरेस्ट एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, जितने भी एक्सपेंसेस होंगे उनको हमने लिस्ट डाउन कर दिया है क्रेडिट साइड पे और उनके आगे हमने उसको अमाउंट लिख दी। तो ये जितनी भी अमाउंट है इसको हम टोटल कर लेंगे तो ये अमाउंट आती है $7,740। तो हमने इनकम समरी के अकाउंट को डेबिट कर दिया इस अमाउंट के साथ और लेजर के अंदर इनकम समरी के हमने इसको पोस्ट कर दिया। हमने पोस्टिंग की इनकम समरी अकाउंट के अंदर तो पहले जो बैलेंस था वो क्रेडिट बैलेंस पड़ा था 10,600 का। अब जो हमने पोस्टिंग की है तो हमने इनकम समरी के अकाउंट को डेबिट कर दिया 7,740 के साथ। तो जो नेट बैलेंस हमारे पास आ गया है इसका जो डिफरेंस लेंगे तो वो आता है 2,860। तो 2,860 जो है वो हमारी नेट इनकम है, क्योंकि हमारी क्रेडिट साइड बड़ी थी और डेबिट साइड छोटी। तो जो नेट अमाउंट आई है वो आई है 2,860। तो ये हमारी नेट इनकम। अब इस नेट इनकम को हमने आगे क्लोज करना है कैपिटल के अंदर। इस स्लाइड में हमने इनकम समरी जो नेट इनकम हमारे पास आई थी हमने उससे क्लोज कर दिया है कैपिटल। इनकम समरी का अकाउंट देखें तो डेबिट यहाँ पे 7,740 लिखा है और क्रेडिट लिखा है 10,600। तो ये जो क्रेडिट साइड है ये बड़ी है और जो डेबिट साइड थी ये छोटी है। इसको निल करने के लिए हम इनकम समरी अकाउंट को इस अमाउंट जो डिफरेंस अमाउंट है इस अमाउंट के साथ डेबिट कर देंगे और क्रेडिट कर देंगे हम कैपिटल के अकाउंट को। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने कहा इनकम समरी अकाउंट डेबिट और सी आर बायड कैपिटल क्रेडिट और अमाउंट लिख दी 2,860। क्योंकि ये नेट इनकम थी इसलिए हमने हमने इनकम समरी को डेबिट किया है और कैपिटल को क्रेडिट कर दिया। अब यहाँ पे इनकम समरी अकाउंट का अगर आप बैलेंस देख लें तो यहाँ पे लिखा है जीरो। इसका मतलब है हमने इनकम समरी अकाउंट टेम्पररी अकाउंट हमने ओपन किया था, अब हमने उसको क्लोज कर दिया, इसीलिए उसका बैलेंस जो है वो निल हो गया। जबकि बायड कैपिटल जो था पहले 10,000 था, अब जब हमने 2,860 में ऐड किया यानी क्रेडिट किया तो ये अमाउंट इंक्रीज करके 12,860 हो। इस तरीके से जो नेट इनकम होती है वो कैपिटल में एडिशन करती है। अगर लॉस होगा तो वो कैपिटल को डिक्रीज करे। तो इनकी आपने याद रखना है कि जब नेट इनकम होगी तो हम इनकम समरी को डेबिट करेंगे और कैपिटल के अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। यहाँ तक हमने रेवेन्यू के अकाउंट को क्लोज कर लिया, एक्सपेंसेस के अकाउंट को क्लोज कर लिया और उनका जो नेट डिफरेंस था उसको हमने क्लोज कर दिया। अब लास्ट जो अकाउंट है वो है ड्राइंग्स का। अब ड्राइंग्स के अकाउंट को हमने क्लोज करना है कैपिटल के अंदर। तो ड्राइंग्स का जो अकाउंट है उसमें जो नॉर्मल बैलेंस होता है वो डेबिट साइड पे होता है, ठीक है। उसको निल करने के लिए उतनी अमाउंट से हमें उसे अब क्रेडिट करना पड़ेगा। अगर ड्राइंग को क्रेडिट करेंगे तो कैपिटल को डेबिट कर देंगे और आपको याद हो तो ड्राइंग्स जो होती हैं वो कैपिटल को डिक्रीज करती है। तो हमने क्या किया है, हमने कैपिटल के अकाउंट को डेबिट कर दिया और ड्राइंग्स के अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया और ये अमाउंट हमने लिख दी 500। तो 500 का अकाउंट जो था वो डेबिट बैलेंस पड़ा था ड्राइंग्स में, इसको जब हमने क्रेडिट कर दिया तो ये अब जो ड्राइंग का बैलेंस है वो जीरो शो हो रहा है यानी निल हो गया और ये अकाउंट क्लोज हो गया। अब ये कैरी फॉरवर्ड नहीं हो। कैपिटल में हमने उसको डेबिट कर दिया, तो जब डेबिट किया तो अब उसको हमने 12,860 में से लेस कर दिया। हमारे पास जो अमाउंट आ गई रिमेनिंग वह 12,360।
तो ड्राइंग्स जो होती हैं वो कैपिटल को डिक्रीज करती हैं। तो यहाँ पे हमने देख लिए हैं 4 एंट्रीज, ये याद रखनी है। पहली एंट्री जो है वो रेवेन्यू की है, दूसरी एक्सपेंस की है, फिर तीसरा उसका डिफरेंस है, और फोर्थ एंट्री आपकी ड्राइंग्स की। तो सबसे पहले रेवेन्यू को क्लोज करना है इनकम समरी के अंदर, फिर सेकेंडली हमने एक्सपेंसेस जितने भी होंगे उन एक्सपेंसेस को क्लोज करना है इनकम समरी के अंदर, फिर उनको जो नेट डिफरेंस होगा उसको हमने क्लोज कर देना है कैपिटल के अंदर, और फिर लास्ट में हमने ड्राइंग्स को क्लोज कर देना है कैपिटल के अंदर। तो ड्राइंग्स हमेशा क्रेडिट होती हैं और कैपिटल हमेशा डेबिट होता है। तो कैपिटल को हमेशा डेबिट करते हैं और ड्राइंग्स को क्रेडिट करते हैं। रेवेन्यूज को जो क्रेडिट होती है उसको डेबिट करते हैं और इनकम समरी को क्रेडिट करते हैं, और जितने एक्सपेंसेस हैं उनको हम क्रेडिट करते हैं और इनकम समरी को हम डेबिट करते हैं। और जिसका नेट डिफरेंस है यानी नेट इनकम है, अगर नेट इनकम है तो हम उसको इनकम समरी को डेबिट करेंगे और कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे। अगर लॉस होगा तो फिर हम उसके ऑपोजिट करेंगे। कॉशंस रिलेटिंग टू क्लोजिंग एंट्रीज, यानी जिसको आपने अवॉइड करना है और आपने केयरफुली जो है वो क्लोजिंग एंट्रीज पास करनी है। तो रेवेन्यू एक्सपेंस अकाउंट को आपने ये ना हो कि आप डबल कर दें उसको। रेवेन्यू को जो क्रेडिट था उसको डेबिट करने के बजाय अगर आप उसको दोबारा से क्रेडिट कर देंगे तो डबल हो जाएगा। एक्सपेंस बैलेंसेस को क्रेडिट करना था उसको अगर डेबिट कर दिया तो वो डबल हो जाएगा। तो इन चीज़ों की तरफ आपने ध्यान रखना है। जो रेवेन्यू क्रेडिट है उसको डेबिट करना है और एक्सपेंसेस जो डेबिट है उनको क्रेडिट करना है, तब जो आपके क्लोज होंगे और उनका बैलेंस डेट होगा। सेकेंडली ड्राइंग्स जो है उनको इनकम समरी अकाउंट के अंदर आपने मूव नहीं करना है, क्योंकि ड्राइंग्स जो होती हैं वो उनका इनकम इनकम या एक्सपेंस के साथ कोई रिलेशन नहीं होता। अगर आपने इनकम स्टेटमेंट बनाई हो, आपको याद हो, तो इनकम स्टेटमेंट में सिर्फ रेवेन्यूज आते हैं और एक्सपेंसेस आते हैं, ड्राइंग्स नहीं आती। ड्राइंग्स जो होती हैं वो कैपिटल जो ऑनर है वो विदड्रॉ करता है अपने जिस भी मकसद के लिए। तो जो वो विदड्रॉ करता है बिजनेस में से, तो उसको ड्राइंग्स कहते हैं। वो ड्राइंग्स डायरेक्टली कैपिटल को रिड्यूस करती है, इसलिए हम ड्राइंग्स को डायरेक्टली चार्ज ऑफ करते हैं अगेंस्ट दी कैपिटल। इस चीज का आपने ख्याल रखना। पोस्टिंग क्लोजिंग एंट्रीज, तो जितने भी टेम्परी अकाउंट्स हैं उनका बैलेंस जो है एट एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड जब क्लोजिंग एंट्रीज पास कर लें तो वो जीरो होना चाहिए। अगर वो जीरो नहीं है तो फिर हमसे कोई मिस्टेक हुई। तो वो जो जितने भी टेम्परी अकाउंट्स हो उन सब को हमने, क्योंकि एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड क्लोज करना है, उसका जो बैलेंस है वो नील होना चाहिए। और ऑनर्स कैपिटल जो है उसके अंदर जो है आपने एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड जो है वो क्लोज करने हैं अकाउंट। ये नहीं है कि आप रेवेन्यू एक्सपेंस अकाउंट साथ साथ क्लोज करते थे ऑनर्स कैपिटल, साथ साथ क्लोज नहीं होते, बल्कि वो एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड हम उसको क्लोज करते हैं। और परमानेंट अकाउंट्स जो होते हैं जैसे एसेट्स है, लायबिलिटीज एंड ऑनर्स कैपिटल है, ये क्लोज नहीं होते। ये क्यों, ये मैं पहले बता चुका हूँ कि ये परमानेंट अकाउंट्स है, ये क्लोज नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल अगर कैश है और कैश में 1 मिलियन बैलेंस पड़ा है तो हम इसे क्लोज नहीं कर सकते, उसको बैलेंस स्टिल नहीं कर सकते, क्योंकि कैश तो ऑलरेडी उसमें मौजूद है। क्लोज करने का मतलब है कि अब उसमें कुछ भी नहीं है, खत्म हो गया। तो क्लोज नहीं करते बस, बल्कि ऐसे अकाउंट्स को हमने आगे ट्रांसफर करना था। इसका लाइबिलिटीज है। अब फॉर एग्जाम्पल आपने किसी के पैसे दे रहे हैं, आप उसको क्लोज नहीं कर सकते जब तक वो पैसे देना। तो उसको वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। इसी तरह ऑनर्स कैपिटल है, उसका पैसा है, उसकी इन्वेस्टमेंट पड़ी, तो आप उसको क्लोज नहीं कर सकते, तो वो कैरी फॉरवर्ड हो जाती है नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड के अंदर। तो परमानेंट अकाउंट्स हम क्लोज नहीं करते, जितने टेम्परी अकाउंट्स हैं उन सब को एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड हमको क्लोज कर देते हैं। इस स्लाइड में आपको नजर आ रहा होगा कि हमने जो है वो पोस्टिंग कर दी है क्लोजिंग एंट्रीज। हर इंडिविजुअल एक्सपेंस अकाउंट आपको नजर आ रहा है, सैलरी एक्सपेंस है, एडवर्टाइजिंग सप्लाईज है, एक्सपेंस है, रेंट एक्सपेंस है, इंश्योरेंस एक्सपेंस है, इंटरेस्ट एक्सपेंस है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। तो हमने इनके बैलेंसेस पहले डेबिट थे और हमने उनको सेम अमाउंट के साथ क्रेडिट कर दिया, और उनके जो बैलेंसेस हैं नीचे आपको नजर आ रहे हैं जहाँ पे डबल लाइन लगाई है। तो यहाँ पे ये बैलेंसेस जो शो हो रहे हैं ये इक्वल है, इसका मतलब है कि ये बैलेंस अब इनका नील हो चुका है, और इसमें अब कोई भी अमाउंट जो है वो ड्यू कहीं पे नजर नहीं आएगी। इस तरह रेवेन्यू अकाउंट है उसको भी हमने क्लोज कर दिया, तो 10,600 था, उससे हमने उसको डेबिट कर दिया। अब इसके भी जो है वो बैलेंस आपको कहीं शो नहीं हो रहा, और ये दोनों अकाउंट्स दोनों साइड्स पे इक्वल है। इसका इनकम समरी अकाउंट है, उसको भी हमने क्लोज कर दिया है, और फिर हमने इसको ट्रांसफर कर दिया कैपिटल के अकाउंट में, तो कैपिटल अकाउंट आपको नजर आ रहा है। इस तरह ड्राइंग्स का अकाउंट था, ये भी क्लोज हो चुका है, तो यहाँ पे इसका बैलेंस जो है वो नील हो चुका है। लेकिन कैपिटल का बैलेंस जो है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा अब नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड के अंदर। पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस,
तो एडजस्टिंग एंट्रीज पास करने के बाद और उनको पोस्ट लेजर के अंदर पोस्ट करने के बाद उनको क्लोज कर लेने के बाद हम अगेन एक ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। इसे कहते हैं पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस। पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस में क्योंकि आपके रेवेन्यू के अकाउंट सारे क्लोज हो चुके हैं, आपके एक्सपेंसेस के अकाउंट सारे क्लोज हो चुके हैं, ड्राइंग्स आपकी क्लोज हो चुकी है, तो जितने भी अकाउंट जो परमानेंट अकाउंट्स होंगे अब वो इस ट्रायल बैलेंस के अंदर आपको शो हो रहे होंगे या आप उसको वहाँ पे लिस्ट डाउन करेंगे और फिर आप चेक करोगे कि डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड्स इक्वल हैं या नहीं। तो जितने परमानेंट अकाउंट्स हैं उनके बैलेंसेस का अगेन हम एक ट्रायल कर लेंगे कि ये बैलेंस के अंदर है या नहीं, और ये वो अकाउंट्स होंगे जो कि कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे इन द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। ये वही रजिस्ट्रेशन है। और अब हम पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस हमने जब बनाया अक्टूबर 31 2005 को, तो यहाँ पे आप नजर आ रहे हैं कि सारे ये एसेट्स के अकाउंट में कैश अकाउंट रिसीवेबल्स एडवर्टाइजिंग सप्लाईज प्रीपेड इंश्योरेंस ऑफिस इक्विपमेंट, फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफिस इक्विपमेंट, फिर नोट्स पेएबल लाइबिलिटीज आ गई, अकाउंट्स पेएबल लाइबिलिटी आ गई, फिर अनअर्न्ड रेवेन्यू ये भी लाइबिलिटी है, सैलरीज पेएबल ये भी लाइबिलिटी, इंटरेस्ट पेएबल ये भी लाइबिलिटी, और कैपिटल जो है ये आपका क्रेडिट साइड पे आ गया। तो जो डेबिट साइड पे आपके सारे एसेट्स आ गए, लाइबिलिटीज आपके क्रेडिट साइड पे आ गई और कैपिटल आपका क्रेडिट साइड पे आ गया। अच्छा, दोनों को हमने बैलेंस किया तो दोनों साइड जो है वो इक्वल है। तो ये पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस से हमें ये पता चल गया कि जो परमानेंट अकाउंट्स हैं उनकी जो डेबिट्स और जो क्रेडिट्स हैं वो इक्वल है। तो यहाँ पे हमसे कोई मिस्टेक नहीं हुई। अब ये वो अकाउंट्स हैं जिनको हम ट्रांसफर कर देंगे नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। स्टेप्स इन द अकाउंटिंग साइकिल जो हमने अब कंप्लीट ऑलमोस्ट कर लिया। तो फर्स्ट क्या था, एनालाइज बिजनेस ट्रांजेक्शन। पहला स्टेप ये था कि हमने एनालाइज करना है, आइडेंटिफाई करना है कि ये ट्रांजैक्शन बिजनेस की ट्रांजैक्शन है या नहीं, फिर इसमें फाइनेंशियल इन्वॉल्व है या नहीं। अगर ये फाइनेंशियल इन्वॉल्व है और ये बिजनेस की ट्रांजैक्शन है, ये ऑनर की कोई पर्सनल ट्रांजैक्शन नहीं है, फिर हम सेकंड स्टेप में उसको जनरलाइज कर देंगे और थर्ड स्टेप में उसको हम पोस्ट कर देंगे लेजर अकाउंट्स में, और फोर्थ स्टेप में हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करेंगे, और फिफ्थ में हम जनरलाइज एंड पोस्ट एडजस्टिंग एंट्रीज, यानी हमने एडजस्टिंग एंट्रीज को पास किया और फिर हम उसको पोस्ट कर देंगे लेजर्स के अंदर। एडजस्टमेंट पास करने के बाद हम जो है वो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस एडजस्टिंग एंट्री पास की, उसको फिर हमने लेजर्स में पोस्ट किया। उसके बाद जो है वो सिक्स स्टेप ये है कि हम एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करेंगे। सेवंथ स्टेप में हम जो है वो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे, फिर उसके बाद ऑनर्स इक्विटी स्टेटमेंट बनाएंगे और उसके बाद फिर हम बैलेंस शीट को बनाएंगे, और एट स्टेप में हम क्लोजिंग एंट्रीज पास करेंगे। जितने इनकम इनकम स्टेटमेंट के अकाउंट्स हैं सब क्लोज हो जाएंगे। जो रेवेन्यू था वो क्लोज हो गया, जो एक्सपेंसेस थे वो क्लोज हो गए, उनको जो डिफरेंस था वो क्लोज हो गया, और फिर ड्राइव्स को हमने क्लोज कर दिया। जब ये काम कर लिया तो इसके बाद हम उसको पोस्ट कर देंगे लेजर्स के अंदर। पोस्टिंग कर दी तो नाइन्थ स्टेप ये है कि हमने पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस बनाया, जैसे कि अभी हमने देखा है पिछली स्लाइड में कि हमने एक पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर किया। तो लास्ट स्टेप जो है वो अकाउंटिंग साइकिल का, उसमें हम पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस बनाएंगे जिसमें तमाम अकाउंट्स परमानेंट अकाउंट्स हैं, क्योंकि परमानेंट अकाउंट्स कैरी फॉरवर्ड होते हैं और जो नॉमिनल अकाउंट्स हैं वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होते। अब जो हमारा टॉपिक है दैट इज करेक्टिंग एंट्रीज। करेक्टिंग एंट्रीज क्या है? हमसे समटाइम्स कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं जब हम जनरलाइज कर रहे होते हैं। तो जनरलाइज करने के दौरान हमसे समटाइम्स ऐसा होता है कि हम जनरल एंट्री सही पास नहीं करते, जिसकी वजह से एरर आ जाता है। अब उस एरर को हमने करेक्ट करना है। उस एरर को हम प्लस माइनस करके करेक्ट नहीं कर सकते, या उसको हम जो है वो ये नहीं कर सकते कि उसको मिटा दें किसी रबड़ के साथ या उसके ऊपर वाइटनर लगा दें, ऐसा नहीं कर सकते। हमें दोबारा से जो है वो एंट्री पास करनी पड़ती है, और एंट्री के थ्रू ही हम हमसे जो भी मिस्टेक हुई है उसको हमें करेक्ट करना पड़ता है। तो एरर्स शुड बी करेक्टेड एज सून एज डिस्कवर्ड। जब भी आपको पता चल जाए कि हमसे ये गलती हुई है, आप उसको जो है वो फौरन से ठीक करें। करेक्टिंग एंट्रीज आर अननेसेसरी इफ रिकॉर्ड द फ्री ऑफ एरर्स। अगर उसमें कोई मिस्टेक नहीं है, कोई एरर नहीं है, फिर तो उसकी कोई जरूरत नहीं। इट कैन बी जनरलाइज्ड एंड पोस्टेड व्हेनेवर एन एरर इज डिस्कवर्ड। जब भी आपको ये एरर का पता चलता है, आप उसको फौरन जनरलाइज करेंगे या जनरलिटी पास करेंगे और फिर उसको रिस्पेक्टिव लेजर के अंदर पोस्ट कर देंगे। इन्वॉल्व एनी कम्बिनेशन ऑफ बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट अकाउंट्स। तो इसमें बैलेंस शीट हो या इनकम स्टेटमेंट हो या दोनों के कोई अकाउंट्स वहाँ पे अफेक्ट हो रहे हैं, तो आप हो सकता है कि
कि वो बैलेंस शीट का अकाउंट हो या इनकम स्टेटमेंट के अकाउंट्स, तो या दोनों की कम्बिनेशन, तो और जैसा भी हो, जो भी एरर हो, आपने उसको करेक्ट करना। इस इलस्ट्रेशन के थ्रू हम देखते हैं कि हमने कैसे अपने अकाउंट्स को करेक्ट करना है, करेक्टिंग एंट्री हम कैसे पास करें। मे 10th को हमें नजर आ रहा है कि एक इनकरेक्ट एंट्री, इसमें लिखा है कैश डेबिट किया और सर्विस रेवेन्यू को हमने क्रेडिट कर दिया, जबकि जो डिस्क्रिप्शन में लिखा है वो ये लिखा है कि ये उसने रिकॉर्ड की कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर्स ऑन अकाउंट, कि उसने कस्टमर्स था जो अकाउंट रिसीवेबल्स थे बेसिकली, उन्होंने हमें पैसे वापस दिए। तो उसने एंट्री क्या पास की, उसने किया कैश डेबिट सर्विस रेवेन्यू क्रेडिट, जबकि उसको एंट्री पास करनी चाहिए थी कैश डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल्स क्रेडिट। जो करेक्ट एंट्री है मे 10th को आपको नजर आ रही है, ये होनी चाहिए थी। उसको करना चाहिए था कैश को डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल्स को क्रेडिट, लेकिन गलती से उसने अकाउंट रिसीवेबल्स की जगह सर्विस रेवेन्यू को क्रेडिट कर दिया। अब इसका मतलब ये हुआ कि सर्विस रेवेन्यू जो है वो 50 की अमाउंट के साथ ओवरस्टेट कर, क्योंकि हम तो ये एंट्री पहले पास कर चुके हैं। जो एंट्री उसने पहले पास करनी चाहिए की होगी वो की थी अकाउंट रिसीवेबल्स डेबिट सर्विस रेवेन्यू क्रेडिट, लेकिन जब कैश रिसीव हुआ तो उसने दोबारा से कर दिया कैश डेबिट और सर्विस रेवेन्यू को दोबारा से क्रेडिट कर दिया। तो उसको सर्विस रेवेन्यू को क्रेडिट नहीं करना चाहिए था, बल्कि अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट करना चाहिए था। अब हमने इसको करेक्ट करना है, तो करेक्ट कैसे करेंगे, क्योंकि सर्विस रेवेन्यू को उसने क्रेडिट किया, अगर हम सर्विस रेवेन्यू को डेबिट कर देते हैं तो 50 के अमाउंट से वो कैंसिल हो जाएगा इफेक्ट, और अकाउंट रिसीवेबल्स को उसने क्रेडिट नहीं किया था, यहाँ पे हम उसको अकाउंट रिसीवेबल्स को क्रेडिट कर देते हैं। तो करेक्ट एंट्री क्या हो जाएगी, सर्विस रेवेन्यू को हमने कर दिया डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल्स को हमने कर दिया क्रेडिट। सर्विस रेवेन्यू किया डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल्स को किया क्रेडिट। सर्विस रेवेन्यू क्योंकि हमने गलती से क्रेडिट किया था, इसलिए हमने उसको डेबिट कर दिया सेम अमाउंट के साथ। इस तरह क्रेडिट और डेबिट 50 माइनस 50 जीरो हो जाएगा। अगर लेजर में चेक करेंगे या पोस्ट करेंगे तो ये 50 की अमाउंट जो है वो जो डबल अकाउंट हो गई थी, अब हमने उसको वहां से लेस कर दी। और अकाउंट रिसीवेबल्स क्योंकि हमने उसको रिकॉर्ड भी किया था, अब हमने उसको यहाँ पे रिकॉर्ड कर, उसको क्रेडिट करना चाहिए था और हमने उसको क्रेडिट कर दिया। तो करेक्ट एंट्री हमने पास कर दी। हमें ये पता चला था फॉर एग्जाम्पल 20th मई को, तो हमने अब करेक्शन कर दी, तो हमने कहा सर्विस रेवेन्यू को डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल्स क्रेडिट। सेकंड एग्जांपल, इनकरेक्ट एंट्री ऑन May 18, डिलीवरी इक्विपमेंट डेबिट अकाउंट्स पेएबल क्रेडिट, और लिखा है कि टू रिकॉर्ड परचेज ऑफ इक्विपमेंट अकाउंट, यानी उसने ये रिकॉर्डिंग की है और परचेज जो हुई थी इक्विपमेंट की ऑन अकाउंट, यानी क्रेडिट के ऊपर जो हमने इक्विपमेंट परचेज किया था उसको उसने रिकॉर्ड किया है, डिलीवरी इक्विपमेंट डेबिट किया है और अकाउंट्स पेएबल को क्रेडिट कर दिया। जबकि जो उसका हेड था, जो हम चार्ट ऑफ अकाउंट्स में यूज कर रहे थे, वो डिलीवरी इक्विपमेंट नहीं था बल्कि ऑफिस इक्विपमेंट। तो उसको एक्चुअल में जो एंट्री पास करनी चाहिए थी वो ऑफिस इक्विपमेंट को डेबिट करना चाहिए था और अकाउंट्स पेएबल को क्रेडिट करना चाहिए था। दूसरी मिस्टेक उसने ये की कि उसको 45 के साथ उसने डेबिट को क्रेडिट किया, जबकि इन एक्चुअल उसको 450 के साथ डेबिट करना चाहिए था और क्रेडिट करना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास दो मिस्टेक्स आ, एक तो हमने अकाउंट गलत इस्तेमाल किया, यानी ऑफिस इक्विपमेंट इस्तेमाल करना चाहिए था, उसने यूज कर लिया डिलीवरी इक्विपमेंट। दूसरी मिस्टेक उसने ये की कि उसने 450 के साथ डेबिट और क्रेडिट नहीं किया, बल्कि उसने 45 के साथ डेबिट किया, यानी जीरो ओमिट हो गया, जीरो जो था उसमें से ओमिट हो गया। अब हमने इसको एडजस्ट करना, एक तो चीज़ ये है कि हमने तो ऑफिस इक्विपमेंट को डेबिट करना है, और डिलीवरी इक्विपमेंट जो है वो गलती से क्योंकि उसको डेबिट किया था, अब हम उसे क्रेडिट करें। तो ऑफिस इक्विपमेंट को डेबिट करना चाहिए और डिलीवरी इक्विपमेंट को क्रेडिट करना चाहिए। अकाउंट्स पेएबल को उसने सही क्रेडिट की, लेकिन वहां पे उसकी अमाउंट जो है वो उसने सही तरीके से रिकॉर्ड नहीं की, जबकि वो होनी चाहिए थी 450, उसने रिकॉर्ड कर ली 445। तो अब हम क्या करें, 450 में से अगर 45 का बैलेंस ये माइनस करें तो ये आ जाता है 405। तो उसको जो फर्दर उसको और जो उसको क्रेडिट करना चाहिए वो 405 के साथ करना चाहिए, और डिलीवरी इक्विपमेंट जो है क्योंकि 45 के साथ किया उसको एज इट इज हम क्रेडिट कर देंगे 45 के साथ, और ऑफिस इक्विपमेंट जो है उसको हम डेबिट कर देंगे 450 के साथ। तो ये करेक्ट एंट्री हो जाएगी, और ऑफिस इक्विपमेंट हमने डेबिट कर दिया, डिलीवरी इक्विपमेंट हमने क्रेडिट कर दिया, और अकाउंट्स पेबल हमने क्रेडिट कर दिया। तो ये एक रिव्यू क्वेश्चन है। The closing entry process consists of closing number one, all asset liability accounts, owner's capital account, all permanent accounts and all temporary accounts. इसको पढ़े जरा गौर से और फिर आप
आंसर में है कि हमें किस ऑप्शन को सिलेक्ट करना चाहिए, किस ऑप्शन को सिलेक्ट करना चाहिए। तो आंसर क्या है इसका? डी है कि ऑल टेम्परेरी अकाउंट्स। नाउ वी विल स्टडी स्टैंडर्ड बैलेंस शीट क्लासिफिकेशन। इससे पहले जो बैलेंस शीट आपने बनाई है उसमें हमने अकाउंट्स को क्लासिफाई नहीं किया था, लेकिन अब जो बैलेंस शीट हम बनाएंगे उसे क्लासिफाइड बैलेंस शीट भी कहते हैं, कि हम अब उसके अंदर क्लासिफिकेशंस करेंगे, यानी हम उसके सब ग्रुप्स के अंदर उनको डिवाइड करें। जैसे आपको एसेट्स नजर आ रहे हैं तो वहाँ पे हमने लिखा है करंट एसेट्स, फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट और इनटेंजिबल एसेट्स। तो जितने करंट एसेट्स हैं वो करंट एसेट्स में आएंगे, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के अंदर आएगी, इससे जो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट होगा वो इस सेक्शन के अंदर आएगा, और इनटेंजिबल एसेट्स जो है वो इनटेंजिबल एसेट्स में आएंगे। जितनी करंट लाइबिलिटीज़ हैं वो करंट लाइबिलिटीज़ में आएंगी, और लॉन्ग टर्म जो लाइबिलिटीज़ होंगी वो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ में आएंगी। उसके बाद ऑनर्स इक्विटी का सेक्शन बनेगा। तो व्हाट आर करंट एसेट्स? Cash and other resources that are reasonably expected to be realized in cash are sold or consumed in the business within 1 year of the balance sheet date. Current assets are listed in the order of the liquidity. Examples: inventory, accounts receivable and cash. तो करंट एसेट्स क्या है? बेसिकली कैश तो करंट एसेट है ही, क्योंकि ये हाईली लिक्विड एसेट है। इसके बाद जो भी एसेट्स हैं जो कि कन्वर्ट हो जाएं कैश के अंदर 1 साल के अंदर, तो 1 साल में वो कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, या आप उनको बेच देते हैं, या वो कंज्यूम हो जाते हैं, तो वो हमारे करंट एसेट्स कहलाएंगे। और उनको जो हम लिस्ट करेंगे वो लिस्ट करेंगे उनको लिक्विडिटी की बेस के ऊपर। जो हाईली लिक्विड होगा उसको हम सबसे पहले लिस्ट डाउन करेंगे, और उसके बाद जो उससे कम लिक्विड होगा उसके कम से कम लिक्विड होगा, उससे कम लिक्विड होगा, इस तरह उसकी प्रेफरेंस बनेगी। और हम सबसे पहले हाईली लिक्विड जो कैश होता है सबसे पहले हम उसको लिखते हैं, उसके बाद अकाउंट रिसीवेबल्स को, उसके बाद इन्वेंट्री, या इसके अलावा अगर कोई अकाउंट्स हैं तो फिर उनको उनकी लिक्विडिटी की बेस के ऊपर लिखते हैं। लिक्विडिटी मतलब ये होता है कि एन एसेट व्हिच कैन बी इजीली और क्विकली कन्वर्टेबल इनटू कैश एट ए मिनिमम लॉस और अ फेयर प्राइस कंसेशन। यानी एक एसेट जो है वो जल्दी से और आसानी के साथ कैश के अंदर कन्वर्ट हो जाए, और उसमें हमें फेयर प्राइस जो है वो रिकग्नाइज करें, तो उस बेस के ऊपर हम उसको फिर करंट एसेट्स के अंदर लिस्ट करेंगे। So the second classification is long-term investments. Resources which can be realized in cash and their conversion into cash is not expected within 1 year. यानी ये वो resources है, कन्वर्ट तो होंगे ये कैश में, लेकिन हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि 1 साल के अंदर अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। तो वो इन्वेस्टमेंट जो 1 साल के अंदर अंदर जो है वो कैश के अंदर कन्वर्ट ना हो, क्योंकि 1 साल से ज़्यादा टाइम पीरियड उनको लगे, तो ऐसी इन्वेस्टमेंट्स को हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स अनदर कंपनी, और इन्वेस्टमेंट्स इन लैंड हेल्ड फॉर रीसेल। जैसे कि बॉन्ड्स हैं, आप किसी दूसरी कंपनी के बॉन्ड्स आप परचेज करते हैं, और आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आपने इस बॉन्ड को मार्केट में बेचना नहीं है अभी, बल्कि 1 साल के बाद आपकी इंटेंशन है कि आप उसको बेचेंगे, तो वो हमारी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आएगा। इसे अगर आप लैंड परचेज किए और आप उसको आपकी एक्सपेक्टेशन ये है कि 1 साल से ज़्यादा टाइम लगेगा, तो फिर वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के अंदर आएगा। Another classification is property, plant, and equipment. So these are basically tangible resources, relatively permanent nature, used in the business, and not intended for sale. Examples, for example, land, buildings, and machinery. तो ये जो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है ये हमने इसलिए परचेज किया है कि हम उसको बिजनेस में यूज़ करें, और हमारी कोई इंटेंशन नहीं है कि हम इसको मार्केट में सेल करें। यानी हमने उसको सेल करने के लिए परचेज नहीं किया, बल्कि बिजनेस के अंदर यूज़ करने के लिए परचेज किया। वो आपकी लैंड हो सकती है, बिल्डिंग भी है, मशीनरी भी है, इक्विपमेंट भी है। और ये टैंजिबल रिसोर्सेज हैं जिनकी फिजिकली एग्जिस्टेंस है, और ये परमानेंट नेचर के हैं, यानी ये इसको हमने सेल करने के लिए परचेज नहीं किया है, बल्कि हम इससे यूज़ करेंगे बिजनेस के अंदर। Another classification under the assets is intangible assets. और intangible assets जो है they are non-current resources and they do not have physical substance. तो जैसे लैंड था, बिल्डिंग था, मशीनरी था,
इस तरह की उनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, बल्कि ये जो है वो पेटेंट्स हो सकते हैं, कॉपीराइट्स हो सकती हैं, ट्रेड मार्क्स हो सकते हैं या ट्रेड नेम्स हो सकते हैं। इट गिव्स द होल्डर एक्सक्लूसिव राइट ऑफ यूज फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। तो ये होल्डर जो भी ये एक्सक्लूसिव राइट लेता है, वो एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम के लिए उसको होल्ड कर सकता है या उसको यूज़ कर सकता है। जैसे पेटेंट्स हैं, तो पेटेंट्स आपको एक एक्सक्लूसिव राइट देते हैं कि आप इस प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करें और कोई दूसरा जो है उसको इमिटेट ना कर सके, यानी उसकी कॉपी जो है वो ना बना सके। तो ये नॉन करंट रिसोर्सेज है, ये करंट एसेट्स के नीचे नहीं आते, ये होते लॉन्ग टर्म है, लेकिन इनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, इसलिए हम इसको इनटैंजिबल एसेट्स कहते हैं। करंट लायबिलिटीज, तो लायबिलिटीज में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे करंट लायबिलिटीज। व्हाट आर करंट लायबिलिटीज? इट इज द ऑब्लिगेशन reasonably expected to be paid from existing current assets or through the creation of other current liabilities within 1 year। तो ये जो करंट लायबिलिटीज हैं, बेसिकली इसकी जो मेच्योरिटी पीरियड है या एक्सपायरेशन डेट है, ये 1 साल से कम अरसे के लिए होती है। वो लायबिलिटीज जो कि आपने साल के अंदर अंदर पे करनी होती हैं, उनको हम करंट लायबिलिटीज कहते हैं। तो ये करंट लायबिलिटीज को हम करंट एसेट्स के थ्रू पे ऑफ कर सकते हैं, या हम जो है वो एक शॉर्ट टर्म लोन लेके, यानी जिसकी मेच्योरिटी साल से कम कम हो, उससे भी हम करंट लायबिलिटीज को पे ऑफ कर सकते हैं। तो ये जो करंट लायबिलिटीज हैं, इनकी जो मेच्योरिटी पीरियड होगा वो लेस देन अ ईयर होगा। फॉर एग्जाम्पल अकाउंट्स पेबल, वेजेस पेबल, इंटरेस्ट पेबल एंड करंट मेच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। अगर एक लॉन्ग टर्म डेट है और उसकी आपने इंस्टॉलमेंट देनी है, और जो कि इस साल आपकी ड्यू है, तो वो करंट लायबिलिटीज में है। तो जो भी आपने पेमेंट करनी होगी जो कि इस साल के अंदर ड्यू होगी, लॉन्ग टर्म ही हो चाहे वो, तो उसका जो पोर्शन होगा वो इस करंट लायबिलिटीज का पार्ट होगा, तो हम उसे इस करंट लायबिलिटीज के अंदर ही लिखेंगे। करंट लायबिलिटीज के बाद आता है लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। तो लॉन्ग टर्म जो लायबिलिटीज हैं, ये वो ऑब्लिगेशन है कंपनी की जो कि उसने 1 साल के बाद पे करनी होती है। जो 1 साल के अंदर अंदर पे करनी हो, वो करंट लायबिलिटीज। और जो 1 साल के बाद एक्सपेक्टेड हो, उनको हम लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज कहते हैं। तो वो लॉन्ग टर्म नोट्स पेबल भी हो सकते हैं, बॉन्ड्स पेबल भी हो सकते हैं, मॉर्गेजेस पेबल भी हो सकते हैं और लीज लायबिलिटीज भी हो सकते हैं। तो कोई भी ऐसी लायबिलिटी जिसकी मेच्योरिटी 1 साल से ज़्यादा है, उसको हम लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कहते हैं। वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी के सेक्शन में आएगा। तो लास्ट जो सेक्शन है लायबिलिटीज के बाद, वो आता है ऑनर्स इक्विटी। अगर वो एक प्रोप्राइटरशिप है यानी सिंगल ओनरशिप है, तो हम उस कैपिटल के साथ उस बंदे का नाम लिखेंगे जिसके नाम पे वो बिजनेस है। अगर वो पार्टनरशिप है, तो हम हर पार्टनर का एक इंडिविजुअल अकाउंट जो है वो उसके अंदर लिस्ट करेंगे। अगर वो कॉर्पोरेशन है, तो कॉर्पोरेशन में, क्योंकि अभी आप कॉर्पोरेशन से इतना ज़्यादा आप फेमिलियर नहीं है, क्योंकि आप जो है वो सिंगल ओनरशिप के अकाउंट्स जो है उसको डील कर रहे हैं। तो कॉर्पोरेशन में जो है वो स्टॉक होल्डर इक्विटी सेक्शन बनता है, और उसमें फिर कैपिटल स्टॉक और फिर रिटेन अर्निंग्स आती है। So in this slide you can see a classified balance sheet in account form। सबसे पहले कंपनी का नाम, फिर बैलेंस शीट, फिर एज ऑन या सिंपल हमने डेट लिख दी इस तारीख को, क्योंकि बैलेंस शीट जो होती है वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए बनती है। सबसे पहले हमने लिखा करंट एसेट्स, ये एसेट्स लिखे, उसके बाद नीचे लिखा करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में हमने लिस्ट किए जितने करंट एसेट्स थे। सबसे पहले कैश लिखा, फिर अकाउंट रिसीवेबल्स लिखा, फिर हमने एडवर्टाइजिंग सप्लाईज लिखी, फिर हमने प्रीपेड इंश्योरेंस लिखा, और उसके नीचे लिखा हमने टोटल करंट एसेट्स। फिर नेक्स्ट सेक्शन में हमारे पास प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, उसमें ऑफिस इक्विपमेंट था, हमने ऑफिस इक्विपमेंट लिखा और लेस कर दिया हमने उसमें से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, वो 40 थी, और हमारे पास टोटल एसेट्स आ गए। तमाम एसेट्स करंट और लॉन्ग टर्म को हमने ऐड किया, हमारे पास टोटल एसेट्स आ गए। इसके बाद लाइबिलिटीज एंड ऑनर्स इक्विटी का सेक्शन आ गया। सबसे पहले हमने करंट लाइबिलिटीज लिखी। करंट लाइबिलिटीज में सबसे पहले हमने नोट्स पेबल लिखा, फिर अकाउंट्स पेबल लिखा, फिर इंटरेस्ट पेबल लिखा, फिर अनअर्न्ड रेवेन्यू, सैलरीज पेबल, इन सबको ऐड किया तो ये आ गई टोटल करंट लाइबिलिटीज। इसके बाद हमने लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज लिखी, जिसमें एक नोट्स पेबल था, इसकी मेच्योरिटी जो है वो 1 साल से ज़्यादा अरसे के लिए थी। जो ऊपर नोट्स पेबल है, इसकी मेच्योरिटी 1 साल से कम अरसे के लिए थी। और जो नीचे नोट्स पेबल शो हो रहा है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में, ये भी नोट्स पेबल है, लेकिन इसकी मेच्योरिटी 1 साल से ज़्यादा है, इसलिए हमने इसको लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में लिखा। और उसके बाद हमने टोटल लाइबिलिटीज की। उसके बाद हमने ऑनर्स इक्विटी लिखी, और उसके नीचे हमने जो उस बंदे का नाम था CR बायड कैपिटल,
वो लिखा और उसके बाद उसके सामने हमने उसकी अमाउंट लिखी। और टोटल लाइबिलिटीज ऑनर्स इक्विटी जो है, यानी टोटल लाइबिलिटीज में ऐड की ऑनर्स इक्विटी, तो हमारे पास ये टोटल अमाउंट है और ये अमाउंट इक्वल होनी चाहिए जो हमारे टोटल एसेट्स है। तो इसका मतलब है कि बैलेंस शीट जो है वो बैलेंस है। लास्ट में एक रिव्यू क्वेश्चन है। A current asset is number A, the last asset purchased by a business, an asset which is currently being used to produce a product or service, usually found as a separate classification in the income statement, expected to be realized in cash, sold or consumed within 1 year of the balance sheet or the company's operating cycle, whichever is longer. तो कौन सा आंसर होना चाहिए, ए या बी या सी या डी? मेरा ख्याल है आप इस काबिल बन चुके हैं तो आप ये आंसर दे सकें कि आंसर डी है। थैंक यू वेरी मच। इसको गौर से सुने और इंटरेक्टिव सेशन के लिए क्वेश्चन प्रिपेयर करें और फिर वहाँ पे मुझसे क्वेश्चंस करें, ताकि कोई भी अगर किसी भी कंसेप्ट में कोई इश्यू है हम उसको क्लियर कर सकें।